hello everyone, hello class 10 students. So this is video for class 10 Hindi board examination. So when I was in class 10th last year, from the beginning, from the starting, teachers used to say us that please focus on this language subject also, because the students do the mistake that they avoid the Hindi or English, these language subject. Also because of getting low marks in this language subject, their percentage decrease, and this happens often. Okay, so from the starting I was focusing on, means what, I was like, okay, I'm gonna focus on Hindi English also, I'm gonna score good, I want to score good in Hindi English, like that. But I was not getting any suggestion from anywhere related to Hindi or English. Yes, as people says that what you need in what you need suggestion in Hindi or English, just read the stories and that's all. But it was not like me, I want suggestion. So yeah, so I think there are there are students like me, so who need suggestion like me. So yeah, here I am to give you the suggestion. I'm going to give you the suggestion, and if you're going to follow these suggestions, really I'm telling it to you, you're going to score well, really. And even I'm going to tell you the mistakes that you should avoid you in your Hindi board examination. And if you are going to avoid those mistakes also, then yeah, you are gonna rock it. Okay, so let's start the video without any delay. So now I'm gonna give you the suggestion section wise. मतलब section A में था passage, the first in passage. So yeah, so in section 1 there was a passage, we know. So in passage what you should do, but I think in my session the passage is easy, quite easy. No, it was not easy. Means दो type का passage आता है, एक काव्यांश, एक वाक्यांश, maybe. Sorry, आई डोंट नो द नेम्स. काव्यांश और वाक्यांश ऐसा था. हाँ, काव्यांश और वाक्यांश था. तो इन वाक्यांश द पैसेज इज इजी, मीन्स इट वॉज ईजी. बट काव्यांश में मतलब पैसेज वॉज नॉट ईजी. यस, क्योंकि उसमें जो एक होता है वाक्यवांश में, उसमें स्टोरी होता है एंड यू कैन गेट द आंसर्स बाय रीडिंग द पैसेज. बट इन काव्यवांश यू मीन्स वो पोएम होता है और यू कैन गेट दैट आंसर. हाँ, मतलब बाय रीडिंग, मतलब बहुत डीपली होता है वो, जो बहुत अच्छे होते हैं हिंदी में, दे कैन गेट दोज थिंग्स. सो या, सो आपको वो चीज़ करना है. Okay, so I would suggest you that you not need to do practice on Vakyans, or you should do practice in Kavyans. Okay, and I don't think so. Okay, in passage I know I need to give you a lot of suggestion, because you can see your PYQ, and from that you can analyze it, which type of question it is hard or easy, like that. Yes, so yeah, if you are doing PYQ, you know that. So in section 2 maybe grammar. Yeah, in section 2 section B it was grammar. So grammar in my session it was quite easy, really I'm telling it to you that it was easy in my session. Or if you know the basic Hindi grammars, because in my school our teacher used to teach us basic grammars like that, and from that I have seen 2 or 3 videos in YouTube also. So yeah, and from these things I have done good in grammar. From my side I was thinking that I have done all this questions right in grammar. So yeah, like that. So grammar is easy, really I'm telling it to you. If you want to do good in grammar, do your basics. Means हाँ, अच्छा कर लो अपने बेसिक्स को, जैसे अलंकार का उस एग्जाम्पल ये वो, और उतना डीपली दे आर नॉट गोना आस्क यू एंड नॉट एट ऑल. मैं बस देखी थी कि आपको एग्जाम्पल देते हैं एंड नाउ दे आर सेइंग इट टू यू कि कौन सा टाइप ऑफ अलंकार है ये, और लाइक दैट. तो इजी अच्छा करना चाहते हो तो आप एक एक अलंकार पर टॉपिक अलंकार सर्च इट ऑन गूगल, सॉरी सर्च इट ऑन यूट्यूब, और अलंकार के बारे में जान लो, समाज के बारे में जान लो, सबके बारे में ऐसे करके जान लो, और या तो ठीक आ जाएगा. मतलब कर लोगे आप, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लोगे. एग्जाम्पल मतलब समझ लोगे. रटना बिल्कुल नहीं है, वो द पीपल्स डू रटते हैं. क्लास 10 में रटना नहीं है, आपको समझना होगा कि अनुप्रास अलंकार मतलब क्या होता है. तो आपको इन एग्जामिनेशन आपको ऐसा ही आएगा कि मतलब कुछ ये चीज़ पूछ लिया, अब ये कौन सा अलंकार है. तो इफ़ यू नो कि अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, इस अलंकार में होता क्या है, देन यू आर एबल टू गिव आंसर कि ये कौन सा अलंकार है. सो जो रटते हैं, फॉर देम दे यूज टू फाइंड कि अरे अलंकार का मैं नाम कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये एग्जाम्पल तो मैंने लर्न किया ही नहीं, क्योंकि आप समझे नहीं थे. तो आप समझना इज ईजी, समझना इज इंपॉर्टेंट. आप अगर समझ के जा रहे हो इन ग्रामर, देन इट इज गोना ईजी फॉर यू. सेम विद द सेक्शन सी, दैट इज द राइट क्वेश्चन आंसर सेक्शन. येस, इन क्वेश्चन आंसर सेक्शन यू नीड टू मतलब अच्छे से सारा चैप्टर को अच्छे से कर लेने का, मतलब अच्छे से कर लेना है, और आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करना है. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यूट्यूब और एवरीवेयर फॉर द PYQs और फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, लाइक समथिंग क्वेश्चन आंसर PDF. यू आर गोना गेट द क्वेश्चन आंसर PDF, एंड फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज, कि ये चैप्टर मेरा हो गया है. अब टाइम नहीं है आपके पास, येस, बट या फॉर प्रैक्टिस यू कैन डू सो. अगर आपने सारा चैप्टर क्लियर एंड कॉन्सेप्ट कर लिया सब चीज़, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप मतलब हाँ किसी से कर सकते, मतलब फोन में सर्च कर सकते हो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड देन यू कैन राइट इट ऑन योर कॉपी. बिकॉज इन हिंदी आई थिंक राइटिंग मतलब अच्छे से लिखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन हिंदी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों के, इवन मेरे, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं. तो या फॉर दैट यू नीड टू डू प्रैक्टिस. एंड नाउ फॉर सेक्शन डी, दैट इज राइटिंग सेक्शन, और फॉर निबंध ये सब. तो इट्स डैम श्योर इट इज राइटिंग सेक्शन, मीन्स यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑन दिस सेक्शन. मतलब आपको घर में करना होगा ये प्रैक्टिस, जैसे विज्ञापन लिखने का, कैसे ए से लिखे, कैसे ये, और यू हैव टू बी क्रिएटिव लाइक दैट. सो मेरे में क्या हुआ था, लेट मी टेल यू रियली. आप ये करना, मेरा सोचो कितना अच्छा ये है,
मतलब ये है लक। सो मैंने कभी भी मतलब मैंने हिंदी इसमें सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया था ज़्यादा, बट मैं 1-2 कर रही थी और फिर मैं उसी में से मैं पता नहीं कहाँ तो मैंने कहाँ तक सैम्पल पेपर देख लिया, तो मैं उसी को सॉल्व करने लग गई। तो उसी सैम्पल पेपर में देयर वाज़ अ क्वेश्चन ऑफ विज्ञापन का क्वेश्चन था। सो इन विज्ञापन वो कुछ जल से था आई थिंक, हाँ मतलब नल से था, नल जल ऐसे बनाना था। तो मैं उसको बनाई, मतलब वो मैं घर में लिख रही थी, तो मैं कुछ भी कर रही थी उसके लिए। एंड देन उसको मैं अच्छे से जब ऐसे मैं कुछ भी किया, ऐसे मतलब मैंने अब उसमें अपना टाइम दिया, आइडिया लगा, ऐसा वैसा किया। और आई एम नॉट गोना से दैट कि वही क्वेश्चन आगे एग्जाम में, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा, मतलब अगर मैं जो चीज़ मैंने वो बनाया था अगर मैं वही वहाँ बना दूँ तो या इट्स गोना वर्क, बट आई हैव नॉट डिड सो। मतलब मैंने लेकिन वो नहीं किया था, मतलब मैंने घर में उतने अच्छे से उसको नहीं किया था, मैंने उस विज्ञापन पे ध्यान ही नहीं दिया था। लाइक ये विज्ञापन थोड़ी ना आ जाएगा जो मैं इसे सर्च करूँ, अच्छे से लिखूँ। आई वाज लाइक कि जैसे मैंने इसमें लिखा बहुत अच्छा है, और फिर मैंने उसी तरह वहाँ लिखा। तो आई वाज रिग्रेटिंग कि मैंने पहले से अच्छे से उसको अच्छे से 2-3 अच्छा वर्ड क्यों नहीं सोचा था उस समय, ऐसा वैसा मैं भूल गई। सो इट वाज लाइक दैट। सो या और फिर आपको निबंध और क्या आता है, निबंध होता है या पत्र होता है, कुछ होता है क्या क्या डायरी एंट्री होता है मे बी, हाँ। सो ये सब के लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस, येस 2 और 3 टाइम्स यू, हाँ आपको फॉर्मेट आना चाहिए अच्छे से। अगर आपको फॉर्मेट आता है अच्छे से और आप थोड़े क्रिएटिव हो, कुछ आप कहानी लगा के कुछ भी लिख सकते हो, आप थोड़े ये नहीं हो तो अच्छे से कर सकते हो, देन या यू कैन डू गुड इन राइटिंग सेक्शन ऑल्सो। सो या दैट्स आई थिंक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, दैट्स इनफ। Yes, that's all you need in Hindi for Hindi examination. Okay, but now I'm gonna give you the suggestion or the things that you should avoid in your Hindi examination. Is that, let me tell you first, is that आपको, what the people used to say कि writing doesn't matter at all. Yes, it is, because my handwriting in English or Hindi, it was not good at all. No, my handwriting is so bad. So मैम मतलब बट मैंने बहुत सारे वीडियो दिखा था कि handwriting matters or not, but many people have said that no, writing doesn't matter. हाँ, सो इट मैटर्स, बट मैं नहीं बोलूँगी, मतलब बहुत जन का हैंड राइटिंग ऐसा गंदा होता है कि उनका हैंड राइटिंग समझने लायक होता है और समझा जा सकता है अगर अच्छे से देखो तो ऐसा आपका हैंड राइटिंग है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू। बट अगर आपका हैंड राइटिंग मेरे जैसा है जो समझने लायक भी नहीं है तो इट्स नॉट गुड फॉर यू, नॉट एट ऑल, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये सो अच्छे से लिखना है आपको, मतलब अच्छे से, और मतलब स्पेलिंग्स मिस्टेक कम करना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना है और टाइम मैनेज करना है अच्छा से। येस, और दी अनदर थिंग कि आपको क्रिएटिव रहना है। क्रिएटिव मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा लिखना है अच्छे से, लिखना अच्छे से, मतलब दिमाग लगाना, हर एक आंसर्स को अच्छे से डिज़ाइन करके लिखना। डिज़ाइन मतलब ये डिज़ाइन वाला नहीं, मतलब डिज़ाइन मतलब अच्छे से सोच समझ के लिखना। लिखने से पहले सोच लेना कि मेरे को लिखना क्या है, ये मैं कहानी लिखूंगी और मैं लिखूंगी या लिखूंगा, और फिर उसके बाद अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये बस। और हाँ, ग्रामर में थोड़ा ध्यान से करना। ग्रामर में कुछ ऐसा आ जाता है कि आप तुरंत लिख देते हो, तुरंत नहीं लिखना है, मतलब जैसे माइंड में हिट किया यू गोना राइट इट, नो नॉट एट ऑल, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। आपको अच्छे से पहले 2-3 मिनट सोचना है कि ठीक है ऐसा कर लिखने जा रही हूँ और ठीक है लिख दो। तो राइटिंग में भी, क्वेश्चन आंसर्स में भी पहले आंसर्स को अपने माइंड में पहले सोच लो, उसके बाद अच्छे से लिखो, स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से देखो, ऐसे वैसे करके लिखो, यू आर गोना डू वेल, रियली आई एम टेलिंग इट टू यू। बोर्ड एग्जामिनेशन इज नॉट दैट मच हार्ड as you have already given 2 or 3 board examination, okay, and now you know that how much it is hard, or now some people are going to say that in maths it is, but I don't, but yeah, sometimes it is like, because in my session maths board examination was quite easy, science board examination was quite easy, but even on that, because of my foolish mistakes, I have not scored well. And yeah, if you want to know my Hindi board result, let me reveal it to you, that I have scored 89%. Sorry, 89%. I have scored 89 marks in Hindi. Sorry, yeah. So I have scored 89 marks. ठीक है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिवील्ड माई रिजल्ट। या वो मैंने बता दिया कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स में आपको वो करना है। और द मेन थिंग कि सेक्शन डी में पीपल्स क्या करते हैं, फॉर जल्दी में ना, मैंने क्या की थी अपने टाइम में कि एक बार फॉर्मेट लिखी, मैंने गलत लिखा, फिर इसको काटा, फिर दूसरी बार स्टार्ट किया और उसमें फिर मैंने सही फॉर्मेट लिखा। तो मतलब ऐसे होता है कि आप जल्दी में गलत फॉर्मेट लिखने लगते हो, जैसे मेरे जैसा। अगर आप मेरे जैसे नहीं हो तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप हो तो ठीक है, ध्यान से लिखना कि सेवा में ये वो, फिर फर्स्ट में ये, सेकंड में, मतलब भूलना बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से माइंड को अपना एक्टिव रखना उस समय पे, और काम रहना इज द मेन थिंग, और कॉन्फिडेंट रहना इज द मेन थिंग, एंड यू आर गोना रॉक इट, बिकॉज हिंदी इज नॉट दैट मच हार्ड, बिकॉज दिस इज अ नेटिव लैंग्वेज. Yes, this is a native language even. Means yes. So yeah, that's all for the video. I hope you will like it. Thank you for watching. Bye bye.